Good afternoon, students. Today we are going to continue our second chapter of the book Flamingo. That's number 2, The Lost Spring by Anish Jung. It is a third part of the second chapter. Up till now we have discussed till for the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. I have explained this, that how it is a wonder for the children and how it is a means of survival for the elder people. Now after that, one winter morning I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums. Content to watch it standing behind the fence, I go inside. When no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. अब यहाँ पर राइटर बताती हैं कि one winter morning I see Sahib standing by the fence gate. Fence gate दीवार और चारों तरफ की तार लगा हुआ होता है, fence gate कहते हैं इसको। तो एक विंटर मॉर्निंग, सर्दियों की बात है, यहाँ पर लेखिका बता रही है कि मुझे सुबह सुबह साहिब मिला और पड़ोस के ही एक फेंस गेट के पास वो खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वहाँ पर क्या लेखिका ने देखा कि साहिब देख रहा था कि जो क्लब था, क्लब के अंदर दो लोग वाइट कलर के कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहे थे और उनको वो देख रहा था। आई लाइक द गेम। यहाँ पर जो मैंने उससे पूछा साहिब से, तो उसने जवाब दिया कि मुझे ये गेम पसंद है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा होकर इन दोनों का गेम देखता हूँ। कंटेंट वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा था दीवार के पीछे खड़े होकर उनको देखते हुए। सो हियर द राइटर इज एक्सप्लेनिंग और टेलिंग अस अबाउट दिस लाइन दैट he, or we can say that Sahib is content to watch it standing behind the fence. Why the writer has used this lines कि वह content था, he was satisfied, वो अपने आप में satisfied था, सिर्फ देखकर, दूर से ही दीवार के पास खड़े होकर देखकर वो satisfied हो रहा था उन दोनों लोगों को टेनिस खेलते हुए। What does this line referring? ये लाइन क्या शो कर रही है? That he was a poor child and he is not getting all those facilities or the conditions which he can fulfill to play that game or to play that, such type of games. So we can understand here that Sahib is not getting the facilities, he is not providing such facilities that he can fulfill his desires. तो इस तरीके से वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता खेलकर, लेकिन वो देख तो सकता है। तो इस तरह से वो दूर से ही दीवार के पास खड़े होकर देखकर अपने आप को सेटिस्फाइड करता है। That is why the writer has used this line. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो यहाँ पर राइटर बताती हैं कि साहिब ने आगे हमें ये भी बताया कि अगर क्लब के अंदर कोई जब नहीं होता है, अंदर जब कोई नहीं होता है तो मैं अंदर एंटर कर जाता हूँ, जब कोई नहीं होता है तो अंदर अकेले में एंटर कर जाता हूँ। और जो यहाँ पर गार्ड है, जो गेटकीपर है, वो मुझे परमिशन दे देता है कि आप झूले पर झूल सकते हो। He can play or we can say that he can enjoy the game which is free of cost. यहाँ पर कहा जा सकता है वह गरीब बच्चा था, इसलिए उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो गरीबी वाले या ये कह सकते हैं विदाउट गिविंग एनी मनी he can enjoy those games. तो यहाँ पर झूला झूलने की परमिशन उसको कभी कभी मिल जाती थी जब क्लब के अंदर कोई नहीं हुआ करता था। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि साहिब के पास भी अब कोई टेनिस वाले शूज हैं और वो उनको पहने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं that his wish, one wish has been completed. उसकी एक इच्छा तो पूरी हुई कि उसको पहनने के लिए जूते मिल गए, लेकिन वो जूते उसने अपने तरफ से खरीदे नहीं। He did not have any money. He is a poor child. But from where did he get those shoes? Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short. डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट पहने हुए था, वो अलग अलग कलर
के शर्ट एंड शॉर्ट पहने हुए था, और उनके अलावा जो जूते थे, someone gave them to me, बताता है कि वो किसी और ने मुझे दिए। He says in the manner of an explanation, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि he was saying in such a way, कि अपने अपने बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एक तरीका किसी का रिप्लाई देने का होता है, एक ऑर्डर देने का होता है। तो इन अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ऐसा लग रहा था लेखिका को जैसे वो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो पूरी तरीके से सार के साथ मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जूते मेरे को कहीं से मिले हैं, किसी ने मुझे दिए हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज अ पुअर चाइल्ड, ही इज नॉट एबल टू बाय दोज शूज। तो यहाँ पर एक तरीके से वो क्या कर रहा है, एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है लेखिका। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फैक्ट, जो क्लियर फैक्ट ये था, why he was giving such an explanation, क्यों ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा था, क्योंकि वो जो जूते उसने पहने हुए थे वो डिस्कार्डेड थे। डिस्कार्डेड मीन्स जब कोई नापसंद कर दे या उसको यूज में ना ले, तो वो डिस्कार्ड किए हुए थे किसी बच्चे के द्वारा। और क्यों डिस्कार्ड किए थे, वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी मेंशन हियर। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन रहा है जो मेंशन किया है, दैट व्हाई वन ऑफ द बॉय हैज डिस्कार्डेड दैट पेयर ऑफ शूज बिकॉज देयर वाज अ होल इन अ शू। एक जूते में छेद हो रहा था, इसलिए उस बच्चे ने उन जूतों को डिस्कार्ड कर दिया। इस तरह से वो शूज किसको मिल गए, साहिब को, और साहिब की एक डिजायर पूरी हो। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जो बच्चा barefoot, बिना चप्पलों के या बिना जूतों के घूमता रहता था, कुछ भी नहीं पहनता था, और जब उसको कैसे भी चाहे वो एक होल वाले शूज मिल गए, एक शूज में जो होल है छेद वाले मिल गए, चाहे वो फटे हो, उसको मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उनका एक सपना, एक ड्रीम, एक डिजायर पूरी हो गई उन बच्चों की, क्योंकि वो गरीब हैं। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ बाइंग एनीथिंग, सो वी कैन से दैट हिज ड्रीम हैज बीन कंप्लीटेड। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ दिस रीच। लेकिन जो गेम वो देख रहा था, इट इज इंटेंट, ही वाज लुकिंग एट दैट गेम इंटेंटली। इंटेंटली मींस बड़े ध्यान के साथ उस गेम को वो देख रहा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, द राइटर इज टेलिंग टू अस दैट ही वाज नॉट एबल टू प्ले दैट गेम। ही वाज लुकिंग एट दैट गेम इंटेंटली, बड़े ध्यान से देख रहा है, देख सकता है, बट ही कैन नॉट प्ले दैट गेम, वो उस गेम को खेल नहीं सकता। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. और सुबह साहिब जब लेखिका राइटर को मिला था, तो यहाँ पर राइटर बता रही हैं कि साहिब एक मिल्क बूथ, दूध की दुकान पर जा रहा था, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर लगा हुआ था। I now work in a tea stall down the road. और यहाँ पर what the writer is telling, कि साहिब ने राइटर को बताया कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। एक तरीके से जेस्टर बना, इशारा करके वो बताता कि वहाँ पर उस सड़क के पास एक दुकान पर टी स्टॉल पर मैं नौकरी करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। मुझे वहाँ पर एज अ सैलरी 800 रुपीज मिलते हैं, 800 रुपये तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, और वहाँ पर मुझे पेट भर के खाना भी मिलता है। Does he like the job? I ask. His face I see has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो यहाँ पर राइटर पूछती हैं कि क्या तुम्हें ये वाला जो जॉब कर रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, क्या ये काम पसंद आ रहा है? चाय की दुकान पर तुम काम कर रहे हो, ये पसंद है तुम्हें? और यहाँ पर राइटर को उसके चेहरे की तरफ देखते हुए फील होता है कि उसका जो चेहरा था वो केयर फ्री लुक था। पहले क्या था कि वो अपनी मर्जी से कभी भी घर से निकल जाता था, कहीं भी चला जाता था, कोई भी काम करने के लिए निकल जाता था, वो अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन अब वो दूसरे की नौकरी कर रहा है,
तो अब वो दूसरे के अकॉर्डिंग चलेगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर टाइम उसे दुकान पर पहुंचना होगा और प्रॉपरली उसको वो काम करना होगा। तो यहाँ पर राइटर इस टेलिंग क्या बता रही है कि जो साहिब के चेहरे पर केयर फ्री लुक था वो अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब वो दूसरे की दुकान पर नौकरी करता है। पहले जो था उसके पास बैग था, वो उसका अपना बैग था, लेकिन स्टील कैनिस्टर उस दुकान का है, उस दुकान वाले का है, शॉपकीपर का है, जो टी स्टॉल का मालिक है। वो अब ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है दैट इट इज अपियरिंग एज अ हैवी कैनिस्टर। जो स्टील का कैनिस्टर है वो हैवी है और जो उसका बैग था वो उसका हल्का था। तो व्हाई इट इज लुकिंग हैवी? बिकॉज now he is working according to the will, according to the desire of the other person. वो दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग, दूसरे व्यक्ति के इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अब कोई भी काम नहीं कर सकता है। और पहले का जो बैग था उसका अपना था, इट वॉज लुकिंग, इट वॉज सीमिंग वेरी लाइटर, एंड नाउ द स्टील कैनिस्टर इज हैवियर देन हिज बैग। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब अपनी मर्जी का बिल्कुल भी मालिक नहीं रहा। सो इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग हैज टू पार्ट्स, one and both the chapters are revealing, both the parts are revealing poverty to us. फर्स्ट पार्ट में साहिब के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से रैग पिकर्स कितने पुअर होते हैं, हाउ दे आर लीडिंग देयर लाइफ इन अ पुअर वे, और वी कैन से दे आर लीडिंग देयर लाइफ इन पॉवर्टी, दे आर लीडिंग देयर लाइफ इन अ मिजरेबल वे, एंड इट इज एक्सप्लेन, इट इज very nicely given by the Anish Jung, by the writer Anish Jung, through the character Sahib. Now the second part consists of another character who is Mukesh. Second part में जो नया कैरेक्टर है इसी चैप्टर का है, द लॉस्ट स्प्रिंग का, उसमें कैरेक्टर किसको लिया गया है? मुकेश। It was the story of, first part is the story of Sahib, which was who was a rag picker living in Simapuri nearby Delhi. But the second part, जो दूसरा पार्ट है द लॉस्ट स्प्रिंग का, has a main character as a Mukesh, and this story takes us to the place Firozabad. फिरोजाबाद, ये वाला जो सेकंड पार्ट है मुकेश वाला, इससे हमें ये पता लग रहा है कि इट इज अ वेरी फेमस प्लेस। ये जो स्टोरी रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, किस जगह से जुड़ी हुई है? फिरोजाबाद से। और सभी जानते हैं दैट इन इंडिया फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। फिरोजाबाद किस बात के लिए फेमस है? चूड़ी बनाने के काम के लिए। और वी कैन से दैट फिरोजाबाद इज अ इंटरनेशनल मार्केट, इट इज द मेन सेंटर ऑफ इंडिया। Firozabad is the main center of India where Bengal used to make. So let us continue. Let us start our this part. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about the cars? I ask. Now the writer is saying, Anish Jung. Both the parts of the chapter The Love Spring has the same writer, Anish Jung. तो यहाँ पर अनीश जंग क्या बताती हैं? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। यहाँ पर मुकेश के ये कहने पर दैट आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ये अनाउंसमेंट मुकेश करता है बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन, विद अ केयरफ्री लुक। He announces this thing that one day I will be a motor mechanic. एक दिन मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। एक पूरी ऐसा लग रहा था he is insisting, जैसे कि जिद करता होगा, एक उसके अंदर ये बात जिद्दी वाले तरीके से उसके दिमाग में बनी हुई है।
I will learn to drive a car. He answers, looking straight into my eyes. तो यहाँ पर जो मुकेश है राइटर की आंखों में देखते हुए बोलता है कि दैट आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि एक दिन मैं कार चलाना भी सीख जाऊंगा. His dream looms, so we can say that it is a great dream of मुकेश. ये मुकेश का एक बहुत बड़ा सपना है. Now, और क्या सपना है? एक मोटर मैकेनिक बनने का और कार ड्राइव करने का. Now here is a line. His dream looms like a mirage amidst the dust of street. Dream looms like a mirage amidst the dust of street. That Phyllis town Firozabad famous for its bangles. तो ये बात तो पहले बता दिया गया है कि फिरोजाबाद इज द मेन सेंटर ऑफ इंडिया, मेन सेंटर ऑफ आवर कंट्री फॉर बैंगल मेकिंग. फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के काम में एक मेन सेंटर है. तो यहाँ पर देखते हैं दैट हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्टील. कि उसका जो सपना है, मुकेश का सपना है, लूम्स लाइक अ मिराज. It is a very good line. It is a, we can say that simile has been used here. Like, what is simile? It is a comparison of two things. And as like so, words are used to compare or to, we can say that, show a simile. Now, dream like a mirage. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में रेत होता है और दूर से जब हम देखते हैं, जब सूरज की रोशनी उस रेगिस्तान की रेत पर पड़ती है तो ऐसा लगता है चमकती हुई रेत दिखाई देती है. ऐसा लगता है कि वहां पर कहीं वो एक एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है तो वो पानी वाला एरिया है. वो एक चमक के साथ जो एक चमक दिखाई दे रही है उसको देखते हुए तो ऐसा फील होता है. कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जब भी कभी आप कार में ड्राइव कर रहे हो, कार में या किसी भी व्हीकल में आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप तो अपने व्हीकल के अंदर बैठे हुए हो, लेकिन जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है तो दूर से सड़क को देखते हुए ऐसा लगता है कि सामने सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है. बहुत तेजी से सड़क चमकती हुई नजर आती है, मगर ऐसा नहीं है. जैसे ही आप पास में पहुंचते हो तो वहां पर सड़क के अलावा आपको नहीं दिखाई देता है कुछ भी. इसके अलावा जो आपको दूर से दिखाई देता है कि पानी है वहां पर, तो वो पानी भी नजर नहीं आता है. इन द सेम वे मिराज, मिराज इज अ मृग तृष्णा. मृग तृष्णा मीन्स जो अभी बताया गया कि दूर डेजर्ट एरिया में, इन अ डेजर्ट एरिया, जब दूर से चमकती हुई चीज को नजर आती है, ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई पानी का एरिया है, यहाँ पर पानी है. लेकिन जब हम उसको उसके पास पहुंचते हैं देखने के लिए तो वहां पर हमें कोई पानी नहीं दिखाई देता है. तो इसी को यहाँ पर बोला गया है लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कंपैरिजन किया गया है. ये मिराज वाला जो है कंपैरिजन किया गया है फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स के लिए कि जो उनका सपना है, फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स का जो सपना है वो भी एक मिराज की तरह है. जिस तरीके से मिराज में जैसे हम पास पहुंचते हैं तो हमें पानी देखने को नहीं मिलता है, दूर से दिखाई देता है कि वहां पर पानी है, लेकिन वो चमक होती है, वो नहीं. जब पास पहुंचते हैं वहां पर कोई पानी नहीं मिलता है. वो धूल में, हम कह सकते हैं कि धूल में धूसरित हो जाना या फिर धूल में मिल जाना. इसी तरीके से फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं उनके सपने भी इस मिराज की तरह धूमिल हो जाते हैं. ये कह सकते हैं कि उनके सपने भी धूल में मिल जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, his dream
यहाँ पर राइटर बताती हैं कि his dream looms like a mirage amidst the dust of street, कि उनका जो बैंगल मेकर्स का, चाहे वो मुकेश हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर राइटर बता रही है कि मुकेश का जो सपना है इट इज ऑल्सो लाइक अ मिराज दैट विल बी मिक्स्ड इनटू द डस्ट ऑफ स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की सड़कों की धूल पर इन लोगों के जो सपने हैं धूल में मिलकर ही रह जाते हैं, जस्ट लाइक अ मिराज इन द डेजर्ट एरिया। Firozabad famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Now students, you can see that every other family, what is the meaning of every other family? In the eyes of the student, बच्चों की आंखों की नजर से तो ये रहेगा कि हर दूसरा परिवार, but really it is the same thing that Firozabad में if we are saying that there are 500 families in Firozabad, कि अगर हम कहें कि फिरोजाबाद में 500 परिवार हैं तो 500 में से आधे यानी 50% families are engaging in making bangle making. What they are making? Bangle. तो आधे परिवार, we can say that 250 families are engaged in bangle making. So, we have just supposed कि हमने एक माना है, सपोज क्या है कि अगर वहां पर 500 फैमिलीज हैं तो उनमें से 250 फैमिलीज बैंगल मेकिंग में बैंगल मेकिंग का काम करती है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Just now I have told you that Firozabad is the main center of India of bangle making. चूड़ी बनाने के काम का फिरोजाबाद एक फेमस सेंटर है और यहाँ पर फैमिलीज ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दे हैव स्पेंट देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन को वहां पर लगा दिया है। किस काम में? चूड़ी बनाने के काम में, ग्लास को वेल्डिंग करने के काम में। ऑल द फैमिलीज हु आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग हैव स्पेंट देयर जनरेशन बिफोर जनरेशंस in making bangles. मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी एक चूड़ी बनाने वालों के परिवार में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब यहाँ पर राइटर बता रही हैं कि जो बच्चे वहां पर ये चूड़ी बनाने का काम करते हैं, इट इज अ इलीगल वर्क। ये जो काम है ये इलीगल है। छोटी छोटी डिंजी सेल्स में, छोटी छोटी कोठरियों में बैठकर वो बच्चे, बड़े, उनकी फैमिली मेंबर्स, वो सब इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, काम करते रहते हैं। यहाँ पर राइटर बता रही है इट इज टोटली इलीगल वर्क। व्हाट इज इलीगल हियर? दैट द चिल्ड्रन आर डूइंग वर्क एट द स्मॉल एज, कि छोटे बच्चे कम उम्र में वहां पर चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। और ये बात इन बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि इतने हाई टेम्परेचर वाली भट्टियों के पास बैठकर, क्योंकि चूड़ी बनाने का जो काम होता है तो उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर उसको मेल्ट किया जा रहा है ग्लास को, देन इट विल देयर शुड बी हाई टेम्परेचर टू मेल्ट द ग्लास। तो इतने हाई टेम्परेचर पर भट्टियों के पास ये छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, इनको ये नहीं मालूम है छोटी छोटी कोठरियों में ना कोई हवा की फैसिलिटी है और ना ही कोई लाइट की फैसिलिटी है, ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है वहां पर। और ऐसी जगहों पर ये छोटे बच्चे काम करते हैं, ये एक गैर कानूनी काम है। अगर इन बच्चों को पता हो तो इन्हें भी ये पता ही नहीं है कि मुकेश और की फैमिली, मुकेश और उसके जैसे और भी 20,000 और बच्चे जो इन गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं और अपने जीवन का कीमती समय वहां पर लगाते हैं, अपने पूरे दिन का समय इस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको ये अभी तक नहीं मालूम है कि ये काम जो है गैर कानूनी है
और बिल्कुल भी गलत काम है कि बच्चों से ऐसे हार्ड वर्क नहीं कराया जाना चाहिए। और अगर किसी को पता लग गया तो क्या होगा कि जो करवा रहे हैं दैट दे विल बी सेंट टू द जेल। मुकेश आइज beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। अब मुकेश एक बार क्या हुआ, मुझे अपने घर ले गया, और उसका घर भी, जब क्या होता है कि कभी कोई गरीब बच्चा अपने घर किसी अमीर बच्चे को ले जाए तो कहीं ना कहीं वो एक इस तरीके का एक अपने आप को प्रिटेंड करता हुआ नजर आता है, एक कोई ऐसा बहाना शो करता हुआ नजर आता है कि मेरा घर अब बन गया है, मेरा घर बन रहा है बहुत अच्छा, कि जिससे कि उसकी जो एक रिस्पेक्ट है वो कम ना हो। इन द सेम वे मुकेश वॉज टेलिंग टू द राइटर, क्या बताता है राइटर को कि मेरा घर भी रीबिल्ड हो रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage। अब वो उसके घर की तरफ जाती है राइटर, तो क्या देखा उसने कि जब वो पैदल चल रहे थे तो गलियां बदबूदार थी, स्टिंकिंग थी, और गलियों में जो गार्बेज है और पड़ा हुआ था, स्मेल आ रही थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स, और जो घर थे वो एक तरीके से कहते हैं ना, गांव में आपने देखे होंगे कि छप्पर पड़े होते हैं, हट्स होती हैं, कॉटेजेस होते हैं, झोंपड़ियाँ होती हैं, उसी तरीके से वहाँ पर वो जब जा रही थी मुकेश के घर तो उसने देखा कि वहाँ पर देवर होवल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स। उन्होंने राइटर ने घर देखे तो उनकी दीवारें क्रम्बलिंग थी, टूटी हुई। वॉबली डोर्स, व्हाट इज वॉबली? आपने देखा होगा कि गरीब लोगों के घर में ऐसा कोई गेट की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो उनका एक जैसे लोहे की चादर वैसी लगा दी गेट के रूप में, तो जब वो खोलते हैं तो बुरी तरह से हिलती है, तो जब वो हिलती है इसी को क्या कहा जाता है? वॉबली। दैट द गेट विच इज मूविंग हियर एंड देयर। वॉबली डोर्स, नो विंडोज, ऐसी झोंपड़ियां, ऐसे घर जिनमें ना कोई खिड़की, और वो जो गलियां थी, जो घर थे वहां पर, क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट। तो वहां पर उसने देखा राइटर ने कि फैमिलीज बुरी तरीके से घरों की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, छोटे छोटे घर बने हुए थे, फैमिलीज भरी पड़ी हुई हैं, और जानवर भी उनके साथ रह रहे हैं, तो बड़ा गंदा सा सीन नजर आ रहा था अकॉर्डिंग टू द राइटर। और ऐसा लग रहा था राइटर को पता नहीं किस प्राचीन काल की जगह पर मैं पहुंच गई हूँ। प्राइमेवल स्टेट, व्हाट इज प्राइमेवल? प्राइमेवल मीन्स एंशियंट। Primeval means ancient. Here the writer is feeling that she has been went to a place which is looking very ancient, very old. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो राइटर जो है मुकेश के साथ गई उसके घर, जब वो एक पहुंची तो एक घर के सामने वो रुके, तो मुकेश ने उस घर के दरवाजे को पैर से धकेला, पुश किया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेड। तो यहाँ पर जब उन्होंने एंटर किया क्या देखा अंदर कि हाफ बिल्ट शेड। अगेन व्हाट इज शेड? शेड इज आल्सो वी कैन से हट। तो जब उन्होंने अंदर एंटर किया राइटर ने तो देखा कि वो भी आधी बनी हुई शेड थी, आधी बनी हुई हट थी। In one part of it, thatched with a dead grass, is a firewood stove, over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो जब उसने एंटर किया राइटर ने तो उसने क्या देखा कि एक पार्ट में सपोज करते हैं that when she entered the house, it is a house, and in one of that house, in one of that part, it was thatched, कि सूखी घास का छप्पर पड़ा हुआ था, और उस छप्पर के नीचे चूल्हे पर, what is your चूल्हा? That we can say stove on which those families used to make food. Thatched with the dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और उस चूल्हे के ऊपर बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, और उस बर्तन में पालक पड़ी हुई थी, और पालक जो थी उबल रही थी, और उसमें से आवाज आ रही थी सिजलिंग। सिजलिंग
जैसे कि आवाज आती है खाना बनाते वक्त, छन छन टाइप की जो आवाज आती है, दैट इज अ साउंड व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम दैट स्पाइनेज. On the ground in a large aluminum platters. Again platters. What is platter? Platter is a large plate, और वी कैन से दैट हिंदी में हम बोलते हैं ना बड़ा सा थाल. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. व्हाट इज चॉप्ड? कटी हुई. तो वो जो बड़ा सा प्लेटर था वो ग्राउंड पर रखा हुआ था और उस पर बहुत सारी सब्जियां कटी रखी हुई. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail young woman. What is frail? दुबली पतली. तो एक दुबली पतली सी महिला वहां पर उसको दिखाई दी, जो कि शाम का भोजन तैयार कर रही थी पूरी फैमिली के लिए. Through eyes filled with smoke, she smiles. और उसकी आंखों में, अब चूल्हा है, चूल्हा लकड़ी जलती है तो धुआं निकलता है, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था तो आंखें वैसी होती हैं, फिर भी वो मुस्कुराते हुए देखती है. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. So what the writer is telling that कि जो महिला अंदर एंटर करने में दिखाई दी थी वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, और मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ थी वो इस समय बहू के रूप में उसको सम्मान दिया जाता था, और ये कहा जा सकता है कि घर को चलाने के लिए ये उन तीनों की इंचार्ज है. किसकी? मुकेश की, उसके बड़े भाई की जो कि हस्बैंड है, और उसके फादर. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings a veil closer to her face. आपने कस्टम देखा होगा, जो रीति रिवाज देखा होगा कि पुराने टाइम से क्या अभी भी घरों में होता है कि घूंघट लगाने वाला कस्टम. तो देखा क्या कि वहां पर घूंघट लगा लिया उसने. कहने का मतलब है, घूंघट का मतलब उसने अपना चेहरा साड़ी से ढक लिया. क्यों? ये एक रिस्पेक्ट शो करना होता है. उसने जब उसके घर में एक कोई बड़ा उसके फादर ने एंटर किया, तब ये जो है उसने रिस्पेक्ट शो की. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. और ये नियम है, तो यहाँ पर एक कस्टम है, रिवाज है. रिवाज के अकॉर्डिंग मेल एल्डर्स के सामने उनको क्या करना होता था? एक रिस्पेक्ट शो करना होता था, उसके लिए घूंघट लगाना होता था. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर. जो एल्डर है यहाँ पर, बड़ा व्यक्ति जो घर में एंटर करता है, वो कौन है? वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. अब इतने लंबे समय तक, काफी लंबे टाइम से, काफी सालों से यहाँ पर जो ये व्यक्ति है, जो बड़ा एल्डर व्यक्ति जिसने घर में एंट्री की, पहले टेलर का काम किया, उसके बाद बैंगल मेकिंग का भी काम किया, पूरी जिंदगी भर काम किया, लेकिन फिर भी अपने घर को दोबारा से रेनोवेट नहीं करा पाया, मतलब उसको ठीक नहीं करवा पाया, और ना ही वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाया, इतना भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया. तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इन लोगों के बीच में कितनी गरीबी थी. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making videos. और जो कुछ भी वो अपनी फैमिली के लिए कर सकता था वो उसने इतने किया कि वो उनको, दोनों बच्चों को सिर्फ बैंगल मेकिंग की कला ही सिखा सका. कहने का मतलब है कि उनको सिर्फ चूड़ी बनाने का काम ही सिखा सका. स्टूडेंट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द लॉस्ट स्प्रिंग हैज बीन completed. Tomorrow we are going to continue the fourth part of this chapter. Thank you.